Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So before we proceed, let me give you an overview of the today's session. So how our session proceeds is, first of all, a question comes on your screen. Okay, after that you guys answer the question, and after answering the question I give you a brief information about it. Okay, so the session will be bilingual. So आप उसकी चिंता मत करना, इंग्लिश और हिंदी में ये सेशन चलेगा. एंड yes, the session will be very short and sweet. In a way, this session will prove very helpful to you from the perspective of doing current affairs in a quiz form. ठीक है, and this session will can be considered as a revision session for you as well. ठीक है, so if you learned current affairs from any other platform or any other place, this session can help you to revise it. ठीक है, so आप इसे revision session के तौर पे भी कर सकते हो, और इसे आप अगर नए से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो आप उस वे में भी इसे पढ़ सकते हो, बिकॉज आफ्टर एवरी क्वेश्चन हम उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो एज दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेशन. विदाउट एनी फर्दर अड्यू, let's begin with our session. So the very first question is on your screen. Who is the author of the memoir titled Knife? तो जो मेमोर इज संस्मरण, तो संस्मरण का नाम क्या है? नाइफ. तो नाइफ नामक संस्मरण किस लेखक ने लिखा है? ठीक है, तो आपको बताना है यस, हु इज द ऑथर ऑफ मेमोर टाइटल्ड नाइफ. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुशीदी. ठीक है, सलमान रुशीदी जी ने इस मेमोर को लिखा है. 2022 के अंदर एक पब्लिक इवेंट हुआ था, और वहाँ पे इनके ऊपर हमला किया गया था. सो इन दैट fight, or in that attack we can say, he lost his one eye. His eye got damaged severely and he lost his one eye. So in this memoir with the title Knife, he had explained everything, that how that attack took place, and how was his recovery journey, how he dealt with all these things, how was his experience during that time. So everything is written in that memoir regarding that incident. Okay, so this was the information regarding this question. Let's move to the next question. The next question is, in NASA's Artemis program, which country's astronaut is said to become the first non-American to set the foot on the moon? तो नासा का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है आर्टेमिस. तो ये स्पेस प्रोग्राम है. नासा क्या है? यूएस की स्पेस एजेंसी, राइट. जैसे हमारी इसरो है, वैसे यूएस की नासा है. तो नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम आगे होगा. उस प्रोग्राम के तहत किस कंट्री के एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा मून पे, बट वो अमेरिकन नहीं होगा. ठीक है, यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जापान. तो जापान के एस्ट्रोनॉट को नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत मून पे ले जाया जाएगा. नाउ द क्वेश्चन विल कम इन योर माइंड दैट द प्रोग्राम is of NASA, then why NASA is taking the astronaut of Japan to the moon? Okay, this question might come in your mind. So the answer for this is, there has been a deal between US and Japan that for this particular Artemis program, Japan will develop the lander and the rover for this particular program. Okay, so that means the technology will be provided by the Japan. So for that reason, US space agency NASA will take the astronaut of Japan to the moon. Okay, you must have remembered that in our Chandrayaan 3 mission, there was a lander called Vikram lander and the Pragyan rover, है ना. We given the names, है ना. To the lander we given the name of Vikram, and to the rover there was Pragyan rover. So in similar way, Japan will develop the lander and rover for this particular program, and
For that, NASA will take the astronauts of Japan to the moon. Okay. Next question. So that was it for that particular question. I think that much is sufficient for this thing. Okay. Next question is, which fintech firm has partnered with eSeva and HAN Pokhran to promote digital payments through UPI in Nepal? तो किस fintech firm में, fintech is financial plus technology, मतलब which fintech is कोई ऐसी कंपनी जो कि टेक्नोलॉजी में भी डील करती है और वो टेक्निकली डील करते हुए आपको फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज फिनटेक। तो किस फिनटेक कंपनी ने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ टाइप किया है? किस लिए उन्होंने टाइप किया है? डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए। कहाँ पे? नेपाल में। ठीक है, तो UPI नेपाल में भी यूज़ की जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से किस फिनटेक फर्म ने इन दोनों के साथ आपका टाइप किया है? यस, करेक्ट आंसर। ये दोनों जो है ई सेवा और HAN पोखरन, ये नेपाल से ही हैं, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस। और किस फिनटेक फर्म ने टाइप किया है? फ़ोन पे ने। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो फ़ोन पे ने इन दोनों के साथ टाइप किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग किस कंट्री ने टॉप पोजीशन, फर्स्ट प्लेस सिक्योर किया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट्स वॉज ऑन फर्स्ट पोजिशन, चाइना वॉज इन सेकेंड पोजिशन एंड इंडिया वॉज इन थर्ड पोजिशन। ठीक है, सो द रैंक ऑफ इंडिया is slipped. So earlier we got, I think, 68 unicorns, and this year we have 67 unicorns. So the position of India has now slipped to third. Okay ji. So there was nothing to discuss about this question because it's just the ranking, nothing much to discuss about it. Okay, next question, among the following cricketers, who is among the top 5 in terms of hitting the most sixes in the T20 cricket format? So below this question you guys have given the four options. Okay, so from these 4 options you have to tell कि कौन से क्रिकेटर या फिर क्रिकेटर्स ने सबसे ज़्यादा 6 हिट किए हैं इन T20 क्रिकेट में। ठीक है, आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपको आंसर बताने के बाद मैं बता दूंगा। ठीक है, सो यस, क्या वो विराट कोहली हैं? नहीं। क्या वो कॉलिन मुनरो है? यस। क्या वो रोहित शर्मा है? यस। क्या वो क्रिस गेल हैं? यस। तो इन तीनों ने हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस, मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस हिट किए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2, 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, तो ऐसे जो मल्टीपल ऑप्शन के टाइप का क्वेश्चन होता है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम भी उसी टाइप में इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं ताकि आपको उसकी आदत पड़ जाए, हैबिचुअल हो जाओ। तो मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस की हम बात करते हैं, ये आपको लिस्ट दी गई है। ये वो बैट्समैन हैं जिन्होंने 500 से अधिक सिक्स को हिट किया है। अब रिसेंटली रोहित शर्मा वो पर्सन बन गए हैं जिन्होंने 506 हिट करने का ये मुकाम हासिल किया है। ठीक है, और वो पहले ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। कोई भी ऐसे बैट्समैन नहीं है जिन्होंने 500 सिक्सेस को हिट किया हो T20 फॉर्मेट में। ठीक है, सो पहले नंबर पे है क्रिस गेल जिन्होंने 1056 सिक्सेस को हिट किया है। नेक्स्ट इज़ कायरन पोलार्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आंद्रे रसल 678 और कोलिन मुनरो 548 सिक्सेस। ठीक है, तो क्रिस गेल भी हैं आपके कहाँ के? वेस्ट इंडीज़ के हैं। कायरन पोलार्ड भी आपके वेस्ट इंडीज़ के हैं। आंद्रे रसल भी आपके वेस्ट इंडीज़ के हैं। कोलिन मुनरो किस कंट्री से हैं ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल इंडिया रीच इट्स प्लास्टिक ओवरशूट डे इन 2024 एज पर अर्थ एक्शन रिपोर्ट? तो अर्थ एक्शन रिपोर्ट के अनुसार इंडिया किस दिन पे अपना प्लास्टिक ओवरशूट डे को रीच कर लेगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को प्लास्टिक ओवरशूट का मतलब क्या होता है? प्लास्टिक ओवरशूट इज़ आप जितना प्लास्टिक को प्रोड्यूस करते हो उससे कहीं ज़्यादा ही आप उसे क्या कहते हैं,
इनएफिशिएंटली मैनेज करते हो, मतलब आप उसको उतना रिसाइकल नहीं कर सक रहे हो, जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो उस दर से आप उसे खपा नहीं सक रहे हो, ठीक है, या फिर आप रिसाइकल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पे जितना प्रोडक्शन होगा उससे कई ज़्यादा अब प्लास्टिक का वेस्ट का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा इंडिया में। वो किस दिन पे होगा? 23 अप्रैल के दिन, ठीक है। तो 23 अप्रैल के दिन ऐसा होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा प्लास्टिक का वो सपोज इतना होगा, X% होगा, ठीक है, X होगा, और 23 अप्रैल को वो क्या हो जाएगा? X प्लस समथिंग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रोडक्शन है, ये आपका रिसाइकल है, ठीक है। तो प्रोडक्शन से ज़्यादा आपका आपका रिसाइकल कम हो जाए, हाँ, मतलब आप रिसाइकल कम कर पाओगे, समझ गए ना आप? इस लाइक डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। प्लास्टिक ओवरशूट डे, फिर इस दिन से क्या हो जाएगा? प्लास्टिक पोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज हम उतना ज़्यादा रिसाइकल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा और हम रिसाइकल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फिर उससे पोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लास्टिक पोल्यूशन भी 23 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज हम उसे सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि इंडिया का रैंक क्या है। येस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट पे कौन था? यूएस, है ना। सेकंड पे आपका था चाइना, और थर्ड पे कौन है? इंडिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासाज क्लिपर एयरक्राफ्ट? तो नासा अपना एक एयरक्राफ्ट छोड़ेगा जिसका नाम होगा क्लिपर। तो इस क्लिपर एयरक्राफ्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? क्यों इस एयरक्राफ्ट को स्पेस में छोड़ा जाएगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, टू एक्सप्लोर जुपिटर्स मून यूरोपा। तो जुपिटर का एक मून है यूरोपा, ये आप जुपिटर का थर्ड लार्जेस्ट मून है, ठीक है। हमें पढ़ा है ना, जुपिटर में कई सारे मून हैं, तो थर्ड लार्जेस्ट मून यूरोपा को स्टडी करने के लिए नासा अपना एक एयरक्राफ्ट भेजेगा जिसका नाम होगा क्लिपर, ठीक है। तो साइंस एंड टेक से ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से अब हम स्पोर्ट्स के तरफ आ गए हैं। हु रिसेंटली बिकेम द थर्ड बैटर टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर इन मेंस T20 क्रिकेट मैच? तो मेंस कैटेगरी में T20 क्रिकेट मैच में कौन से है वो व्यक्ति, तीसरे बल्लेबाज जिन्होंने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए हैं, ठीक है। रोहित शर्मा वाला क्वेश्चन क्या था? मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस ओवरऑल। यहाँ पे एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले कौन से वो बैट्समैन है, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दीपेंद्र सिंह ऐरे, ठीक है। ये कहाँ से, किस कंट्री से ये हैं? नेपाल से हैं, ठीक है। ये नेपाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये किन के अगेंस्ट खेल रहे थे? कतर, ठीक है। ये कतर के अगेंस्ट मैच चल रहा था, ओमान में ये मैच चल रहा था, और यस इन्होंने 6 सिक्सेस हिट किए हैं, ठीक है। तो इनके पहले कौन थे? युवराज सिंह थे, है ना, पहले बल्लेबाज। पहले बल्लेबाज कौन थे? युवराज सिंह थे। दूसरे कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और आपके तीसरे जो बैट्समैन हैं वो है दीपेंद्र सिंह ऐरे, जो कि नेपाल से हैं, ठीक है। ओके जी, तो यस, दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. Also don't forget to share it with your friends. चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज़ हो, इंश्योरेंस हो, ठीक है। तो किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स यूज़ में आता है, ये सेशन उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा, ठीक है। एंड येस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करना और बेल आइकन पे भी प्रेस करना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। सो येस, this was it from my side for the day. Until we meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.